Hello guys, this is Pawan Verma and I am here with data interpretation based on profit and loss. This is set 2. In every set I am discussing one DI related to profit and loss or time and work. I will come with time and work later on. Right now I'm discussing with profit and loss. And these all questions are related to mains level. Either it is of PO or clerk. पीओ में भी पूछा जाता है, क्लर्क में भी पूछा जाता है इस तरीके का डीआई। वहाँ पे पहले डीआई पूछने का तरीका जो होता था एवरेज, परसेंटेज, इसके ऊपर पूछा जाता था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, चैप्टर के ऊपर डीआई पूछी जाती है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर सेट 2 है ये हमारा। सेट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। Before starting, I'd like to you please subscribe our YouTube channel Banking Edutainment and press the bell icon so that you can get the notification of each and every videos. And in every video, you will learn something new, some new shortcut that will help you to crack your exam. You can follow me on social media platform like Facebook, Instagram, Twitter. These are my IDs. You can send your queries, you can send your doubts. I will try to solve your queries. Join our Telegram channel BSc Academy Nagpur. In this channel, we discuss current affairs, quantitative aptitude, all the sections whatever you are having in competitive exams. You can send your queries directly on WhatsApp also. This is our official WhatsApp number. Let's start the series data interpretation based on profit and loss. Okay, this is our diagram. Study the direction first. Study the following information carefully and answer the given question. The given line graph shows the sum of the cost price and selling price and the discount offered on different articles. This line graph is all about what? Sum of the cost price and selling price. This blue line indicates sum of the cost price and selling price. This is the sum of cost price plus selling price, right? And this red line indicates discount offered. Discount offered on article A is 20x, article B is 10x. Like this is the diagram. And second statement is saying the sum of discounts offered on all these articles is 2300. Sum of discount offered on all these articles. Sum means sum of the discount of article A plus B plus C plus D plus E is total is 2300, right? Sum of discount offered on all three articles, all these articles. That means we can find out 20x plus 10x plus 22x plus 33x plus 30x. We don't need to write this, right? You have to calculate like this: 20 plus 10, 30, 30 plus 22, that is 52, 52 plus 33, that is 85, 85 plus 30 is 115x is equal to 2300. X will be how much? This is 2 times 20. X value is 20. So we know that हमें क्या पता चल गया? 20x. X की वैल्यू है 20. That means आर्टिकल A पे हमने डिस्काउंट कितना दिया है? 20x. 20 into 20 that is 400. इस तरीके से हमें पता चल गया कि हर आर्टिकल पे हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसको भी इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा 200. This will also like 440. This will be 660 and this will be 600. तो इस तरीके से हर आर्टिकल का डिस्काउंट कितना दे रहे हो आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन था। डायरेक्शन में ये सारी चीजें आपने कंक्लूड कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्या पूछा गया है वो आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें होती है आपको वो सीरीज हमने बना के ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देखिए। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज की। उसकी अलग से प्लेलिस्ट ही है, हर चैप्टर के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर की प्लेलिस्ट उसमें जाइए और उस चैप्टर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है, अलग अलग तरीके का सॉल्व करने का तरीका, शॉर्टकट तरीका, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। सारे प्लेलिस्ट आपको डिफरेंट चैप्टर के मिल जाएंगे। और अभी ये प्रोग्रेस में है, बहुत सारे चैप्टर अभी धीरे धीरे हम लोग लेके आएंगे। तो इस तरीके से ये सारे डाटा दिया हुआ था डायग्राम पे। डायग्राम में हमने कंक्लूड किया, डिस्काउंट पता चल गया, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस सबका पता है। दिस इज सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल सी का 3000 है, आर्टिकल डी
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल में, और प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से ही पूरा एक पूरा सीरीज है, उसमें लगभग 15 लेक्चर्स हैं। हर सीरीज में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके डिस्कस किया है मैंने, उसको देखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये डायग्राम को सॉल्व करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, तो हमें डिस्काउंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, एक्स की वैल्यू थी 20, राइट, और इस तरीके से सबकी डिस्काउंट की वैल्यू हमें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹100 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। आर्टिकल ए के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल ए की बात करें तो कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज गिवन, दैट इज 5100। और क्वेश्चन क्या कहता है? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 100 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस if the article A had been marked up by 20% less amount than the original, okay, then how much discount should be offered on the article so that there is profit of 14%? ओके, क्वेश्चन को कंक्लूड करते पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमने इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल ए का, एक सेलिंग प्राइस है और एक एमआरपी होगी। इस तरीके से इसके बीच में डिस्काउंट की बात होगी और इसके बीच में प्रॉफिट या तो लॉस की बात होगी। यही क्रोनोलॉजी है जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया है, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस इज 100 मोर। अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इज 100 मोर कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो ये होगा x प्लस 100, और इन दोनों का सम मुझे बताया गया है, दैट इज 5100, राइट। दिस विल बी लाइक 2x प्लस 100। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया 2x प्लस 100 will come over here, 2x is equal to 5000 and x will be 2500, यानी कि x क्या पता चला? कॉस्ट प्राइस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस है 2500 और फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 100 मोर, दैट इज 2600। और डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे डिस्काउंट पता है, दैट इज 20x, और x की वैल्यू है 20, तो 20 इन 20 दैट इज डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 400 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब उसका एमआरपी कितना था? उसको हमने एमआरपी क्या रखा था? उसका एमआरपी रखा था हमने 3000 रुपीज। 3000 का मार्क प्राइस लिखा, स्टिकर प्राइस, उस पर 400 रुपीज का डिस्काउंट दिया एंड 2600 रुपीज में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। अब आगे कहता है कि इफ द आर्टिकल ए हैड बीन मार्क्ड अप by 20% less amount than the original। कितना हमने मार्कअप किया था? कितना हमने मार्कअप किया? मतलब 2500 का हमारा सामान था कॉस्ट प्राइस, उसको हमने 3000 रुपए का टैग लगाया, यानी कि 500 रुपए बढ़ाकर टैग लगाया हमने, तो मार्कअप बाय 500 था। अब कहता है कि इफ आर्टिकल ए हैड बीन मार्कअप 20% लेस अमाउंट देन द ओरिजिनल, 20% लेस अमाउंट देन द ओरिजिनल, 500 हमने मार्क प्राइस अबव लगाया था, राइट। जो भी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस से 500 अबव हमने 500 रुपए बढ़ाकर हमने मार्केट प्राइस लगा दी। अब कह रहे हैं कि जो हमने बढ़ाया था 20% कम करता हूं, मतलब इसका 80% अगर हम निकालते हैं 4/5 मतलब 400 रुपीज अगर हम बढ़ाएंगे, कॉस्ट प्राइस से 400 रुपीज अगर हम बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगी? 2900 न्यू मार्केट प्राइस हो जाएगी। Then how much discount should be offered on the article so that there is profit of 14%? तो मैं इसमें कितना डिस्काउंट दूंगा जिससे मुझे 14% की प्रॉफिट हो जाएगी, राइट। तो डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है कि डिस्काउंट में कितना दूंगा जिससे मुझे इस पे 14% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो 2500 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और इस पे दिस इज लाइक बाय डिफॉल्ट 100%, वी नो दैट। अब प्रॉफिट कितना करना है? तो 14% की प्रॉफिट करनी है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू सेलिंग प्राइस 114% ऑफ 2500, दैट इज 2500 का 114%, 0 कैंसिल आउट, 25 into 14, 114, दैट इज 2500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 into 14 दैट इज 350, 2850, करेक्ट। 2850 आ गया सेलिंग प्राइस, और हमने एमआरपी क्या लगाया हुआ है? 20% लेस। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा था
उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो 20% लेस देन द ओरिजिनल अमाउंट, जो हमने 500 रुपये पहले बढ़ाया था उस पर 20% लेस करके अब मार्क प्राइस लगाऊंगा 2900, और उस पर हमने अभी सेल कर दिया 14% प्रॉफिट करके, यानी कि 2850। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? एमआरपी है अभी 2900 रुपीज का, तो डिस्काउंट हो गया 50 रुपए का। तो हमें ये पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड। ऑप्शन बी हो गई हमारी आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, आप शायद बाकी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको समझिए, बाकी चैप्टर को भी हम लोग आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, डाटा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद नहीं होता है तो आप हमारे सॉल्यूशन को देखिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 200 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज लेस, दैट मीन्स लॉस हुआ है। ठीक है, आर्टिकल सी के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज 3000 and selling price is 200 less than the cost price. If the cost price of article C had been 25% more and the amount by which article C has been marked up is 15% more than the original, then find the profit loss percent if the discount offered on the article remain the same. Okay, हमने पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसी तरीके से डाटा बनाता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है एक सेलिंग प्राइस है, एक एमआरपी है, 3 चीजें हो गई। और कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज 3000, डिस्काउंट कितना है? तो एक्स की वैल्यू हमें पता है कि दैट इज 20 इंटू 22 इज 440, यानी कि डिस्काउंट हम दे रहे थे 440 की डिस्काउंट पहले दे रहे थे, एमआरपी पे 440 का डिस्काउंट दे रहे। एंड सेलिंग प्राइस इज 200 लेस, वापस से वैसे ही बात करें, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो ये 200 कम है, x माइनस 200, और दोनों का सम कितना है? तो दोनों का सम है 3000 रुपीज। तो दिस विल बी लाइक 2x, 3000 इज इक्वल टू 2x माइनस 200। 200 इधर आएगा तो हो जाएगा 3200, 3200 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1600, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गई 1600 और ये 200 कम है, तो दिस विल बी लाइक 1400। टोटल सम इज 3000 और इस पे हमने 440 रुपए का डिस्काउंट दिया था, राइट। तो सेलिंग प्राइस इज 1400, सेलिंग प्राइस इज 1400। ये आया कब था? जब मैंने एमआरपी पे 440 का डिस्काउंट दिया था। तो मार्केट प्राइस क्या होगी? तो 440 इस पे ऐड कर देते हैं, 1840। दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। अब क्वेश्चन कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सी हैड बीन 25% मोर, कॉस्ट प्राइस इज 25% मोर, 1600 का 25% कितना होता है? 1/4, दैट इज 400, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25% मोर है यानी कि 2000, 25% बढ़ा दिया, एंड द अमाउंट बाय विच आर्टिकल सी हैज बीन मार्क्ड अप इज 15% मोर देन द ओरिजिनल। कितना मार्कअप किया था हमने? 1600 से कितना अबव करके रखा था हमने? तो 240 रुपीज बढ़ा के रखा था। अब ये कहता है कि द अमाउंट बाय विच आर्टिकल सी हैड बीन मार्कअप 15% मोर देन द ओरिजिनल, यानी कि 240 को 15% बढ़ाकर अगर हम आर्टिकल को रखेंगे तो 15% ऑफ 240 कितना होगा? 10% इज 24 एंड 5% इज 12, 24 प्लस 12 36 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 276 का अब हम अगर बढ़ाएंगे, राइट। मार्केट प्राइस अब जो हम रखेंगे दैट विल बी 276 मोर देन कॉस्ट प्राइस, दिस विल बी लाइक 2276। मार्केट प्राइस अब हो जाएगी 2276। Then find profit or loss percent if the discount offered on the article remain same. डिस्काउंट जो हम पहले दे रहे थे वो सेम रहेगी, तो अभी डिस्काउंट अब जो देंगे आप 440 की ही देंगे।
440 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक सेलिंग प्राइस आएगी। अब जो सेलिंग प्राइस आएगी उसमें से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है कि क्या प्रॉफिट होगी, कितनी परसेंट की लॉस होगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो 440 रुपीज इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1836। 1836 का कॉस्ट प्राइस आएगा, करेक्ट। और उसका आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस आएगा। 440 का अगर डिस्काउंट देंगे तो 1836 विल बी द सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है तो 2000। तो यहाँ पे लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपए की और उसको हम सेल कर रहे हैं कितने पे, तो सेल कर रहे हैं हम 1836 रुपीज पे। तो लॉस हो गई है। लॉस कितनी की हो गई, तो 164 रुपीज की लॉस हो गई। सब्सट्रैक्ट कर दिया 2000 माइनस दिस वन। अब हमें क्या बताना है, तो लॉस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बाय सीपी। लॉस इज 164, सीपी इज 2000 एंड इनटू 100। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। 2 से कैंसिल करें तो 8 2 82 और एक 0 है तो 8.2% की लॉस हो जाएगी। 8.2% लॉस। दिस इज योर आंसर। यही पता करना है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 8.2 ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगी सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से उसी फॉर्मेट से पूरे डीआई को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं उसी फॉर्मेट से, राइट। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। पहले आप 1 लाइनर या 2 लाइनर सॉल्व कर रहे थे, अभी क्या है कि सेंटेंस को आपको डायग्राम के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाटा एंड रिपीटेशन चार्ट के साथ आपको कनेक्ट करना है और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेंस लेवल में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। मेंस लेवल जिसका प्रीलिम्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिसके प्रीलिम्स निकल रहे हैं लेकिन मेंस नहीं निकल रहे, तो उनको मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये सारे सीरीज जो डाटा इंटरप्रिटेशन का मैं जो डेली एक एक करके पोस्ट करूंगा उसको आप देखिए, समझिए और एक कैपेबिलिटी बनाइए कि आप उस सारे क्वेश्चन को डील कर पाए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वो इस तरीके का नहीं होगा, वो अलग होगा, वो डिफरेंट लेवल का होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं उसको, फिर आप कोशिश कीजिए पहले बनाने का, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ। आर्टिकल एफ कहाँ है, आर्टिकल एफ तो है ही नहीं। कह रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ इज 2.5 टाइम्स द डिस्काउंट ऑफर ऑन आर्टिकल डी। आर्टिकल डी में जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसका 2.5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ है। लिखते हैं, एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 20 इंटू 33 इज 660। 660 का 2.5 टाइम्स, 660 का 2.5 टाइम्स अगर करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ के बारे में, एफ के बारे में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 660 इंटू 2.5। 25 0 0, 25 6 150, कैरी 15, 165, दैट इज 1650। 1650 कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ। ये हो गया पहला सेंटेंस। द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ ई। दैट ऑफ ई मीन्स 3000। दिस इज द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ई। और हमें बता रहा है कि सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एफ, यानी कि इसके सेलिंग प्राइस की बात करें तो दोनों को ऐड करके 3000 आना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस हो गई 1650, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1350, राइट। दोनों को ऐड करके हमें 3000 आ गया। यहां तक कंक्लूड हो गया। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल एफ इज 25% द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड, जो भी एमआरपी थी उस एमआरपी पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं दैट इज 25% ऑफ द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी सम इज 3850। सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और इसी का 25% हम डिस्काउंट देते हैं आर्टिकल एफ में। तो हमें निकालना पड़ेगा 3850 का 25%, दैट इज 1/4। 4 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज 36, 9 टाइम्स, कैरी इज 2, 26, कैरी इज 1, दैट इज 2.5। 962.5 का डिस्काउंट देंगे, ठीक है।
यानी कि हमें पता चल गया कि एमआरपी जो भी था उस एमआरपी पे हमने 962.5 का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गया 1350 और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो 1650 थी। आगे क्या कहता है, देन फाइंड द अमाउंट बाय विच एफ इज मार्क्ड अप। एफ को कितने प्राइस से हमने मार्कअप किया था हमें वो बताना है, राइट। तो पहले आप एमआरपी पता कीजिए, इसमें 962.5 को ऐड कीजिए, दिस विल बी लाइक 1300 प्लस 900 दैट इज 2200, 2312.5, 2312.5 दिस इज द एमआरपी ऑफ आर्टिकल एफ। और कितने प्राइस से आपने मार्कअप किया था आपको यही पूछा जा रहा है। देन फाइंड द अमाउंट बाय विच आर्टिकल एफ इज मार्क्ड अप, कितने प्राइस से हमने मार्क प्राइस अबव लगाई थी। तो दिस इज लाइक 350 एंड 312, कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखना है आपको। 350 2000 एक बीच की वैल्यू मैंने अज्यूम किया, 2000 से 350 कम है और 2000 से 312 ज्यादा है, तो 662.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ई। इजी क्वेश्चन था ये, आर्टिकल एफ के बारे में डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल डी इज ₹240। आर्टिकल डी प्रॉफिट हो रही है 240 रुपए की। If the discount offered on Article D had been 390 rupees less, then what should be the cost price of the article so that the percentage by which article is marked up above its cost price and the selling price remain the same? Okay, पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस डिकोड करते हैं। The profit earned on Article D is 240. प्रॉफिट हो रही है 240 रुपीज की और sum of cost price and selling price is given. Sum of cost price plus selling price is 6240. तो हमें बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। यहाँ पे आर्टिकल डी की कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल डी की सेलिंग प्राइस, आर्टिकल डी की एमआरपी, इस तरीके से डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट हो रही है 240 रुपीज की, ये क्वेश्चन बता रहा है मुझे। ओके, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस विल बी 240 मोर देन कॉस्ट प्राइस, राइट। अगर ये x होगा तो ये x प्लस 240 होगा, तभी तो प्रॉफिट होगी। और दोनों को ऐड करके आ जाएगा 6240। दिस इज 2x, 240 जाएगा 6000 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6000, x इज इक्वल टू 3000, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 3000, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 3240 और हमने डिस्काउंट कितना दिया था 33x, x की वैल्यू थी 20, राइट। तो डिस्काउंट हमने दिया था 660, यानी कि हमने इस पर डिस्काउंट की वैल्यू हो गई 660। तो एमआरपी क्या रही होगी बताओ, क्या एमआरपी रही होगी जिसपे हमने 660 का डिस्काउंट देंगे और इस आर्टिकल को इतने में बेच देंगे। तो इसको ऐड कर दो, दैट इज 33 प्लस 6 3900, एमआरपी हो जाएगी 3900। ये कंक्लूड हो गया। अब कहता है कि इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द आर्टिकल डी हैड बीन 390 लेस, अगर इस डिस्काउंट को 390 रुपए कम कर दूं, कितना हो जाएगा 660 माइनस 390, व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस इज लाइक 300, 270। अब हम डिस्काउंट कितने का देंगे 270। पूरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं एक बार। 390 less than what should be the cost price of the article so that the percentage by which the article is marked up above the cost price and the selling price remain the same। क्वेश्चन का स्टेटमेंट को समझो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि so that the percentage by which article is marked up, कितने परसेंट से हमने मार्कअप किया हुआ था। 3000 का आर्टिकल था, हमने मार्कअप किया था 3900, तो 900 रुपीज हमने इंक्रीज किया हुआ था। तो 900 कितने परसेंट इंक्रीज हुआ कॉस्ट प्राइस से, हमें ये भी देखना है कि 900 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3000। दिस इज लाइक 3 टाइम्स एंड दिस इज लाइक 10 टाइम्स इनटू 100, है ना। 30% अबव हमने मार्कअप किया हुआ था, जो भी कॉस्ट प्राइस थी उससे हमने 30% अबव मार्क प्राइस मार्क की हुई थी। तो कह रहा है कि इफ द डिस्काउंट इज 390 लेस, यानी कि डिस्काउंट अब हम देंगे 270 का,
390 रुपये डिस्काउंट कम करेंगे, तो डिस्काउंट हम कितने का देंगे, 270 रुपीज का। एंड व्हाट, सो दैट द देन व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता करना है मुझे कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस सो दैट द परसेंटेज बाय विच आर्टिकल इज मार्कअप above its cost price and the selling price remain the same। selling price हमारा रहेगा 3240 और जो भी cost price होगी उससे हमने मार्क प्राइस बढ़ाना कितना है, तो 30% बढ़ाना है। ये दोनों को सेम रखना है, यही कह रहा है। so that the percentage by which article is markup and above its cost price and the selling price remain the same, यानी कि जो भी cost price होगी उसमें 30% इंक्रीज करके MRP लगानी है and सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम 3240 मतलब हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं 270 रुपीज़ का। जो भी MRP रही होगी उसमें हमने 270 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो भाई MRP क्या थी, MRP पता करो, तो 270 इसमें ऐड करते हैं, 3240 प्लस 270 दिस विल बी 4500 35 एंड 10, यानी कि MRP अब हमने रखा हुआ था 3510 और ये जो MRP रखी थी हमने कॉस्ट प्राइस से 30% अबव रखी थी। तो हमें पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस पता करना है। दैट मीन्स 3510 इज इक्वल टू 130%, राइट। यू हैव टू फाइंड 100% इन ऑर्डर टू गेट द कॉस्ट प्राइस। तो 3510 इज 130%, you have to find 100%। 13 से ये कटेगी क्या, 13 2s are 26, carry is 9, 91 is 7 times and 2700, answer is 2700। cost price should be 2700। थोड़ा सा ट्रिकी था, क्या कह रहा था कि मैं डिस्काउंट दे रहा था 660 रुपीज का, सेंटेंस कह रहा है कि अगर मैं डिस्काउंट को 390 रुपीज कम कर दूं, यानी कि डिस्काउंट अब मैं 270 रुपीज दूंगा, राइट। और जो परसेंटेज हमने इंक्रीज की थी कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस तक, जो परसेंट हमने इंक्रीज की, यानी कि 900 रुपीज इंक्रीज किया था हमने और ये 900 आ गया था 30%। तो 30% जो हमने इंक्रीज करके रखी थी कॉस्ट प्राइस से, उतना ही परसेंट अभी भी इंक्रीज करना है, डिस्काउंट देना है 270 और सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, मतलब वो परसेंटेज इंक्रीमेंट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू MRP एंड द सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम। 270 का डिस्काउंट देंगे तो 3240 मेरा सेलिंग प्राइस है, उसमें 270 का डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब उसका MRP पता चलेगा। MRP पता चला, दोनों डिस्काउंट की वैल्यू प्लस सेलिंग प्राइस हमने ऐड कर दी, कितना सेलिंग प्राइस में बेचा गया और कितना डिस्काउंट दिया गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो MRP आ जाएगी। तो हमने MRP निकाली 3510। अब 3510 आया कैसे था, तो जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसमें 30% अबव किया है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे यही कह रहा है। तो 30% अबव किया है, मतलब 3510 इज 130%। ये चीजें जो सॉल्व करी हम, तो हमें 100% निकालनी थी, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आती, तो 100% आ गई 2700। उसको सॉल्व करके देखो तो कॉस्ट प्राइस हो गई 2700। ऑप्शन कौन सी हो गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, राइट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, अभी टाइम है तो आप उसको क्लियर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपका नहीं बनता है तो फिर हमारे सॉल्यूशन को देखिए। क्या कहता है, इफ द आर्टिकल B has been marked up by 20% and then same discount is offered on it, then the sum of the selling price and cost price decrease by 90 rupees। आर्टिकल B के बारे में बात कर रहे हैं। सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, ये है, एंड डिस्काउंट हम दे रहे हैं, x की वैल्यू 20 है, यानी कि 200 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। डायग्राम से मुझे ये पता चल रहा है। अब कह रहा है कि आर्टिकल B हैज बीन मार्क्ड अप बाय 20%, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP, ये तीन चीजें हैं। अब जो भी आर्टिकल B की कॉस्ट प्राइस थी, लेट्स से 100x या x, उसको 20% अबव हमने रखा, दैट इज 120x MRP, एंड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट
एंड देन द सेम डिस्काउंट हमने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे डिस्काउंट इज 200 रुपीज एंड एक सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगी? 120x माइनस 200। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो गया। अब कह रहा है कि देन द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाय 90। अब इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो दिस विल बी डिक्रीज बाय 90। इसमें 90 कम करो, कितना आएगा? दैट इज 3760, राइट। 90 कम कर दिया तो इन दोनों का सम। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? x की वैल्यू पता चल जाएगी। सॉल्व करते हैं, सम करते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 100x प्लस सेलिंग प्राइस इज 120x प्लस minus 200. This will be your 3765. Now add this 100x plus 120, that is 220x minus 200 is equal to 3760. This will go over there, that means 220x is equal to 3960. 0 cancel, x की वैल्यू क्या होगी? 396 by 22। तो कैंसिल करते हैं 22 के टेबल में। 22 1s are 22, that is carry is how much? 9 plus 8, that is 17, 176. This is 8 times 28 times how much? 160 and 2 8 times is 16. 8 times means x की वैल्यू आ गई 18। क्या कह रहा है? by what percent find the percent by which the article was marked up above the cost price originally। कितना परसेंट above originally मार्कअप किया गया, हमें वो बताना है। x की वैल्यू 18 आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100 into 18, that is 1800। अब टोटल था 3850, कॉस्ट प्राइस आ गई 1800, कॉस्ट प्राइस was 1800 and the sum was 3850। मुझे पूछ रहा है क्या? Find the percent by which the article was marked up above its cost price originally। कितने परसेंट से बढ़ाकर रखा था हमने ओरिजिनली? तो कॉस्ट प्राइस अगर 1800 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? दोनों का सम था 3800, 3850, उसमें से कॉस्ट प्राइस हो गई 1800, तो 1800 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सेलिंग प्राइस विल बी 2050, करेक्ट। और इसमें डिस्काउंट हमने 200 का दिया था, मतलब मार्केट प्राइस हमने रखा था 2250, तो हमने 1800 से 2250 उसका मार्केट प्राइस रखा था, तो कितना परसेंट अबव रखा था? 450 रुपए अबव रखा था। तो 450 is what percent of 1800? This is what we have to find out. 0 cancel out, 18 9 के टेबल में 2 टाइम्स and 9 के टेबल में 50 टाइम्स, this is 25. Answer is 25% above. Option D। हमें पूछ रहा है कि कितना परसेंट हमने अबव मार्केट प्राइस रखी थी, हमें वो बता रहा है। ओरिजिनली दिस वाज 3850, राइट। तो हमने कॉस्ट प्राइस जो पता करा, दैट इज 1800 में सेलिंग प्राइस आ गया 2050, और इस पे हमने डिस्काउंट जो दिया था उसको ऐड कर दिया, तो मार्केट प्राइस आ गई कितना परसेंट अबव आ गई? तो 25% अबव आ गई। आंसर हो गई 25%। ठीक है, आते नेक्स्ट देखते हैं। Okay, we are completed with this one. Thank you for watching. Thank you for giving your time. कैसा लगा आपको ये वीडियो? कैसा आपको लेवल थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, मैं बेसिक तो नहीं कहूँगा, बेसिक से ऊपर है, मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हैं आप। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का DI है ये, क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो उसमें आपको ये साथ में ही क्लियर हो जाएगा। मैंने ये सोचकर इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कि समझ आया नहीं आया, क्या चेंजेस करनी चाहिए मुझे, क्या चेंजेस नहीं करनी चाहिए मुझे, थोड़ा सजेस्ट भी कीजिए मुझे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू।